الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صدق اللہ العظیم وصدق نبی امین کریم رؤوف الرحیم۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ سب مل کر بلند آواز سے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آل رسول کا کام تھا، آل رسول ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر۔ آل رسول کا کام تھا، آل رسول کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر۔ سر کٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ جائے، سر کٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ اس کے علاوہ شہنشاہ ہند، شہنشاہ عجم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ سبحان اللہ۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر آج بھی امام حسین علیہ السلام کی شان اس طرح بیان فرما رہا ہے کہ غریب نواز کے اس شعر کی آپ اگر تشریح سنیں گے تو پتہ چلے گا کہ کتنا بڑا عظیم راز غریب نواز اپنے اشعار میں فرما گئے ہیں۔ فرماتے ہیں، شاہ است حسین، غریب نواز، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف والے لکھے سو شعر، کیا لکھے؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، یعنی ایک ہوتا ہے بادشاہ، اور کئی بادشاہوں کے اوپر جو ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ شہنشاہ۔ شہنشاہ کے انڈر کئی بادشاہ ہوتے ہیں، ایک ملک کا بادشاہ ہوتا ہے اور کئی ممالک اس کے انڈر میں ہو، وہ کون ہوتا ہے؟ شہنشاہ کہا جاتا ہے۔ وہ فرما رہے غریب نواز کیا؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، یعنی حسین دین بھی ہے اور دین کو بچانے والا بھی ہے۔ کیا بولے؟ حسین، ہم اب تک کیا بولتے ہیں؟ دین بچانے والے کون؟ حسین علیہ السلام، ہم یہی بولتے ہیں، مگر غریب نواز کیا بول رہے ہیں؟ حسین ہی دین ہے بول رہے ہیں۔ کیا بولے؟ ابھی کون بھی چھوٹا سادہ سا مولانا کون بھی بولا ہوتا تو فتویٰ لگا دیتے تھے، ہے کہ نہیں؟ حسین دین کیسا؟ حسین دین کیسا؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے، میرا حسین بادشاہ بھی ہے، شہنشاہ بھی ہے، اور دین کو بچانے والا بھی ہے، اور دین ہی حسین ہے، حسین ہی دین ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے ایک نقطہ یاد آیا مجھے، وہ بتا دوں۔ ہمیں نعرہ لگاتے نہیں، ہمیں نعرہ لگاتے ہیں کیا؟ محبوب سبحانی کی دوست رات ہند، ہاں، غوث پاک کی دوست رات ہند، کیا لگاتے ہیں؟ دوست رات ہند، اور امام حسین کی دوست رات ہند لگاتے ہیں، مولا علی کی دوست رات ہند، دھن 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 جگاتے ہیں، دھن جگانا بولتے ہیں۔ تو وہ کیا ہے؟ ایسا نہیں بولنا، ایسا یہ نعرہ نہیں لگانا۔ یہ کون لگاتے ہیں؟ یزیدیاں لگاتے ہیں، یزیدی۔ جب وہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد انہوں کیا کرے؟
इमाम हुसैन की दोस्त रहा दीन, यानी इमाम हुसैन का न दोस्त रहा न दीन, सबको हमने मिटा दिया, ना उनका दोस्त रहा न दीन रहा। दोस्त रहा दीन इसलिए नारा लगाया जाता है, इस वास्ते ये नहीं लगाना नारा, ऐसा बोल के नारा बंद कराता ही नहीं, बंद कराता नहीं, सुने नहीं, बोले नहीं तू ना कभी कौन तो दोस्त, उन्होंने ये नारा यजीदी लगाए थे, ना उनका दोस्त रहा ना उनका दीन रहा। मोटे बात हम ऐसा बोलते हैं ना, उनका दोस्त भी नहीं रहा, उनका दीन भी नहीं रहा, हमें सब कुछ खत्म कर डाले, कुछ भी नहीं बचा, इस वास्ते वो लगाए थे, आज तुम्हें लगा रहे हैं। पंजे उठाओ क्या कर रहे हैं, तुम्हें लगा रहे हैं, ये नहीं लगाना। तो उसकी हकीकत ये है कि गरीब नवाज बोल रहे हैं, देखो क्या बोल रहे हैं, पहले इसका सही नारा बता तुमको। हमें क्या बोलता है मोटी जुबान में, दोस्त तराधीन बोलते हैं। दोस्त तराधीन बोले तो अब उसका फायदा उठाते हुए इस्लाम के दुश्मनों ने, अहले बैत के दुश्मनों ने, जिनके सीनों में अहले बैत का बुग़्ज़ है, अहले बैत के खानदान वालों का बुग़्ज़ है, गरीब नवाज का बुग़्ज़ है, गौस पाक का बुग़्ज़ है, उनका बुग़्ज़ रखने वाले। अब हमें ये नारा जब तक नहीं लगाते हमारे फातिहा नहीं होते, हमें फातिहा के बाद उनका दीन जगाते हैं। तो ये दीन जगाना क्या है और ये मना करना क्या है, दोस्त रहा दीन। तो आप ख्वाजा गरीब नवाज का शेर, इसमें भी नुक्ता मैं पहले बताता हूँ, पहले मेरी तरफ से आपको दुरुस्त कराता हूँ उसको। क्या दोस्त राधीन नहीं बोलना, क्या बोलना, इमाम हुसैन की दोस्त राहे दीन। क्या, इमाम हुसैन की दोस्त राहे दीन। हाँ, राहे दीन नहीं, दीन दीन। ये मोटी जबान वालों को जब ये बोलने नहीं आ रहा था तो उन्होंने क्या करे, दीन को दीन कर डाले। हकीकत में क्या है, फिर उसे बुक्स रखने वाले, 11वीं बंद कराने वाले, मुहर्रम बंद कराने वाले, मिलाद बंद कराने वाले, गरीब नवाज की छठी बंद कराने वाले, उनको मौका मिला। इसमें से उन्होंने नुक्ता क्या ढूंढ को निकाले, हाँ, लोगों को, आप पढ़े लिखे नहीं लोगों, खेड़े में जाओ पकड़ो उनको, ऐसा बोलो कि उन्होंने यजीद इमाम हुसैन मारे के बाद ऐसा बोले थे, इमाम हुसैन की दोस्त रहा दीन बोले तो उनका ना दोस्त रहा ना दीन रहा, हमने सब कुछ मिटा दिया, इस वास्ते वो नहीं लगाना। लोग डर के हाँ सही हुआ बराबर बोल रहे तो नौकर के बंद कर डाले, मगर हकीकत में क्या है, इमाम हुसैन की दोस्त राहे दीन, यानी इमाम हुसैन की दोस्ती ही दीन का रास्ता है, इमाम हुसैन की दोस्ती ही दीन का रास्ता है। अगर दीन के रास्ते पर चलना चाहते हो तो इमाम हुसैन का जो दीन था उस पर चलो, वही रास्ता इमाम हुसैन का रास्ता है, वही दीन है। गरीब नवाज पे क्या फरमा रहे, दीन अस्त हुसैन, हुसैन ही दीन है, यानी हुसैन का रास्ता ही दीन है। आप कुरान पाक से मैं दलील दे दूं, गरीब नवाज के ऊपर भी ऐसा लगाया था ना, गरीब नवाज की दोस्त राह दीन, अब कभी नहीं बोला, हाँ क्या बोला, दोस्त राहे दीन, यानी जिस राह पर, जिस रास्ते पर दीन का जो रास्ता गरीब नवाज ने अपनाया था उसी रास्ते को हम अपनाए हुए हैं, ये हम गवाही देते हैं नारे में। दीन जगह क्या बोलते हैं, गरीब नवाज ने जो दीन अपनाया था वही दीन हमारा है, इमाम हुसैन ने जो दीन अपनाया था वही दीन हमारा है, महबूब सुबहानी ने, गौस पाक ने जो दीन अपनाया था वही दीन हमारा है। इस वास्ते महबूब सुबहानी की दोस्त राहे दीन बोला, दोस्त राहे दीन, दोस्त तरादीन नहीं। तो आप इसकी दलील, एक तो गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का शेर, शाह हुसैन बादशाह हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, हाँ दीन अस्त हुसैन, यानी हुसैन दीन है, दीन को पनाह देने वाला भी हुसैन ही है। अब ये दलील मैं कुरान से बताता हूँ, क्या, अब हुसैन ही दीन का रास्ता, गौस पाक ही दीन का रास्ता, और गरीब नवाज ही दीन का रास्ता, बंदा नवाज ही दीन का रास्ता। अब ये कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, क्या, सूरह फातिहा जब शुरू है ना, अलहम का सूरा पढ़ते हैं तुम्हें, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यहाँ तक क्या है, ये दुआ है, अल्लाह तू ही हमें पालने वाला है, तू ही रहमान और रहीम है, तू ही बरोज़ महशर उस दिन का मालिक है, और हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। अब जो है ना, अल्लाह से मदद मांगने वाले, अल्लाह को मानने वाले, अल्लाह की इबादत करने वाले, उसे अलग अलग नामों में पुकारने वाले, दुनिया में हर कोई अल्लाह को ही पुकारता है, चाहे वो कुछ भी नाम ले, परमेश्वर कहे, भगवान कहे, यीशु कहे, कुछ भी कहे, उसका तस्वुर ये रहता है कि मैं अल्लाह को पुकार रहा हूँ। तस्वुर क्या रहता है, भले वो शिर्क हो, गलत हो, उसकी बात अलग है, मगर उसका तस्वुर क्या रहता है, वो ये समझता है कि मैं अल्लाह को पुकार रहा हूँ। अब इस्लाम में भी कई फिरके हैं, 73 फिरके। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था ना कि इस्लाम में बनी इसराइल में 72 फिरके हुए थे, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, और इसमें 72 जहन्नमी होंगे, और एक फिरका, एक ग्रोह हक पर होगा, और वही जन्नत में जाएगा।
सहाबा कराम ने पूछा या रसूलल्लाह वो फिरका कौन सा है? इस्लाम में 72 फिरके होंगे, 73 फिरके होंगे, 72 गुमराह होंगे, एक जन्नत में जाएगा, वो फिरका कौन सा है? तब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अलैना व असहाबी, जिस पर मैं हूँ और मेरे सहाबा हैं, जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं, इस पर इसमें जो दाखिल होगा वही जन्नती होगा। अब हर कोई कहता है कि हम भी सहाबा के रास्ते को हैं, हम भी सहाबा के रास्ते पर हैं, हम भी मारते हैं, हम भी कुरान को मानते हैं, हम भी हदीस को मानते हैं, हर कोई ये कहता है। कौन सा भी 73 फिरके वाला कौन भी हमें गुमराही करके बोलता है क्या हमें सहाबा को नहीं मानते बोलता है? नहीं, हर कोई मानता, 73 की 73 मानते हैं। अब फैसला कैसा करना? तो अल्लाह ताला ने फरमाया सीधे रास्ते पर चला करो, जो रास्ता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था और सहाबा का था, और उसी रास्ते पर औलिया चले। अगर वो रास्ता छोड़कर किसी दूसरे रास्ते पर चलते तो अल्लाह क्या गौस पाक को वली बनाता था? गरीब नवाज को वली बनाता था? बंदा नवाज को वली बनाता था अल्लाह? जो सिरात मुस्तकीम छोड़कर अगर कोई बंदा दूसरे रास्ते पर गया तो उसे अल्लाह वली बना सकता है? नहीं बना सकता। तो सीधा रास्ता कौन सा, किसके रास्ते को अपनाना? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, कुरान में सिखाया, देखो सुनो गौर से, इहदिना सिरातुल मुस्तकीम, यानी सीधे रास्ते पर चलो, सीधे रास्ते पर चलो। अल्लाह तमाम के तमाम कह रहे हैं कि सीधे रास्ते पर सब हैं, तो हम किसके पीछे चलें? 73 फिरके वाले सब बोल रहे हैं हमें सीधे रास्ते पर है, सीधे रास्ते पर। अब हमें जाना किसके पीछे है? तो अल्लाह ताला फरमाता है कुरान पाक में, इहदिना सिरातुल मुस्तकीम सिरातुल लजीना अनअमत अलैहिम, सिरातुल लजीना अनअमत अलैहिम, उसके पीछे चलो, वो सीधा रास्ता है जिस पर मेरा इनाम हुआ। सुभान अल्लाह। क्या? जिस पर मेरा इनाम हुआ, मेरे इनाम याफ्ता बंदों के पीछे चलो, यानी औलिया अल्लाह के पीछे चलो। अब इसी मजमून का अल्लाह ताला आगे चलकर एक सूरत में फरमाता कुरान पाक में कि सिरातुल लजीना अनअमत अलैहिम अन्नमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाई व सालिहीन व हसनु उलाइका रफीका। क्या फरमाया अल्लाह ने कि हिदायत याफ्ता बंदे कौन? नबी हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं और सालिहीन हैं। नबी अंबिया, तो अंबिया तो इसमें कुछ शक शुबा नहीं। फिर उसके बाद कौन है? सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, ये कौन है? अब तस्करा किसका सुनते रहे? हमें शुहदा और सिद्दीकीन सालिहीन का तस्करा सुनते रहे। हाँ, जिसने शहीदों का साथ दिया वो सिद्दीकीन थे, जो सही रास्ते का साथ दिए, तो उनका रास्ता है। ये रास्ते पर चलो, ये रास्ते पर चलो, इस पर अमल करो, ये सीधा रास्ता है, ये सीधा रास्ता तुम्हें मेरी बारगाह तक पहुंचाएगा। मौला अगर इससे हट गए तो क्या होगा? इससे हट गए, सीधा रास्ता औलिया अल्लाह की जमात को छोड़कर, औलिया अल्लाह के रास्ते को छोड़कर, वो भी बंदे हम भी बंदे, उन्होंने भी नमाज पढ़े थे हम भी नमाज पढ़ना, ऐसा तस्वर लेकर औलिया अल्लाह की जमात को छोड़कर अगर हमें 72 में किसी दूसरे फिरके में घुसने की कोशिश की तो अल्लाह ताला फरमाता है वो गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन है। कौन है? गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन है। जिन्होंने मेरे औलिया अल्लाह को छोड़कर दूसरे रास्ते में घुस गए, समझो उस पर मेरा गजब नाजिल हुआ। इस वास्ते अल्लाह ने कहा कि अगर किसी मेरे एक भी वली से अगर तुमने बुग़्ज़ रखा तो ये मेरे साथ ऐलान जंग है। क्या? औलिया अल्लाह से बुग़्ज़ रखा तो वो मेरे साथ ऐलान जंग है, अल्लाह ताला ने फरमाया। और फरमाता अल्लाह ताला अनमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाई व सालिहीन व हसनु उलाइका रफीका, इनके साथ रहो, इनके साथ चलो। व हसनु उलाइका रफीका, यानी ये कितने अच्छे रफीक हैं, कितने अच्छे दोस्त हैं, कितनी अच्छी संगत है, इनके साथ रहो, इनके साथ रहो, यानी औलिया अल्लाह की जमात में रहो। तो समझ में आया? तो दीन किस तरह जगाना है? दोस्त राहे दीन। अब कोई भी पूछा, बोला कि दोस्त रहा दीन, नहीं बोलना दोस्त रहा नहीं दीन, दोस्त भी नहीं रहा दीन भी नहीं रहा, ऐसा बोले तो समझाना बराबर नहीं, बा उसका माना ऐसा नहीं, ऐसा है, उसे दुरुस्त कराना, हमें गलत नहीं होना। ठीक है, अब आगे चलें कि गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की इस शेर की तशरीह के बाद कल जहाँ तक हमने बयान सुना था करबला का, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शहादत के वक्त तक का, यानी जब आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सर कलम किया जा रहा था, उस वक्त हमने बयान सुना था, उस वक्त तक, वहाँ तक। तो अब उसको आगे बढ़ाते हैं। जब इमाम अली मकाम, इमाम दो जहाँ, सैयदुश्शुहदा, सैयदुश्शबाब अहलुल जन्नह, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इख्तियारुल किस्मत, जिन्हें क्या कहा गया? इख्तियारुल किस्मत, अल्लाह ताला ने अपनी किस्मत का इख्तियार उन्हें अता किया था। तो जब आपका सरे अनवर आपके तने अतहर से, यानी जिस मुबारक से जुदा किया जा रहा था, तो वो समझ रहे थे कि हम हुसैन का गला काट रहे हैं। शिमर क्या समझ रहा था?
यजीदी क्या समझ रहे थे, हम इमाम हुसैन का गला काट रहे हैं। शिमर ये तस्वर करते हुए काट रहा था। शिमर क्या कर रहा था, हुसैन का गला काटते हुए। समझ रहा नहीं, ख्याल से सुनना, मैं कई बातें 2-2 3-3 बार क्यों बोलता हूँ, तुम ना समझ में आ जाओ क्या। मुझे लगता है जब तुम ना नहीं समझ रहा तो फिर मैं से दोहराता हूँ। शिमर जब छुरी जब चला रहा था तो उस वक्त ये समझ रहा था कि मैं हुसैन का गला काट रहा हूँ, मगर करबला के मैदान में तनहा हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत नहीं हुई। वो एक पूरा शहादत का पूरा मुकम्मल बाब था, पूरा मुकम्मल बाब तकमील करना था। इस वास्ते मैदान करबला में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद थे, हमें वाक़यात में सुना है। फिर मौला अली मुश्किल कुशा भी मौजूद थे, सैयदा कायनात भी मौजूद थी वहाँ पर। इस वास्ते शहादत के वक्त तो अल्लाह तबारक तआला ने ये शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इतने आजमाइशों के बाद इतना क्यों ली और क्या वाक़या पेश आया। सर कट रहा था तो उस वक्त क्या सिर्फ तन्हा इमाम हुसैन उस जगह पर थे या कोई और भी थे, ये एक राज है, एक राज है जो बरोज़े महशर अल्लाह ताला हर एक के सामने खोलेगा। तब फैसला होगा कि करबला वाले कौन और उनके दुश्मन कौन, उनके दोस्त कौन। सुन ले, करबला के मैदान की दास्तान बरोज़े महशर सबसे पहले यही दास्तान खुलेगी। क्या होगा, बरोज़े महशर मैदान में हर कोई, हर नबी, हर उम्मती अपनी अपनी उम्मतों को लेकर सबके साथ खड़ा रहेगा। ये हदीस है, ये हदीस शरीफ है, मैं सुना रहा हूँ। क्या कर वहाँ मैदान महशर में हर कोई अपनी अपनी उम्मतों को लेकर, हर नबी और हर नेक बीवी, हजरत हवा रजी अल्लाह तआला अन्हा से लेकर हजरत मरियम रजी अल्लाह तआला तक वगैरह वगैरह जितने भी, सारा है, हाजरा है, मरियम है, सफूरा है, जुलेखा है रजी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन, तमाम औरतें नेक बीबियाँ और तमाम अंबिया और तमाम उम्मतें, हर कोई मैदान महशर में खड़ा है। किस वास्ते, हिसाब किताब देने के वास्ते। अब हिसाब किताब शुरू होने वाला है। तब उस वक्त अल्लाह ताला ऐलान करेगा, अल्लाह ताला ऐलान करेगा, ये ऐलान करेगा कि अहले महशर, अहले महशर अपनी अपनी निगाहें झुका लो, फातिमा बिनते मोहम्मद आ रही हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस वक्त तमाम के तमाम अंबिया, औलिया, सिद्दीकीन, शोहदा, सालिहीन, जितने भी नेक बीबियां, जितने भी औरतें दुनिया में आई, जितने भी मर्द आए, जितने भी नबी आए, सब के सब हाथ बांधे अल्लाह ताला के सामने वहां पर अपनी निगाह झुकाकर इस तरह खड़ी रह जाएंगी। सब के सब खड़े रह जाएंगे, मर्द भी औरतें। अब उस वक्त अब ये क्या हो रहा है, अल्लाह ताला सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा का अदब करवा रहा है। कहाँ पर, समझ में आ रहा नहीं, मैदान महशर में हमें गई किसके पास, अल्लाह के पास। अल्लाह का अदब करना नहीं, वाह, अल्लाह के सिवा किसके पास भी अदब नहीं करना, किसके सामने झुकना नहीं, अल्लाह के सिवा किसके पास भी नहीं झुकना, नहीं तो शिर्क हो जाता, अल्लाह उठाकर जहन्नम में फेंक देता। मगर अल्लाह ताला मैदान महशर में शिर्क कराएगा इनके हिसाब से, समझे ना। शिर्क क्या कराएगा अल्लाह ताला मैदान महशर में, सब नबी, सब वली, सब औरतें, मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा जिनके नाम से पूरा एक सूरा है कुरान पाक में, है ना, सूरा मरियम। मगर सूरा फातिमा है क्या, सूरा फातिमा नहीं, सूरा मरियम है। मगर फातिमा का सूरा वहां खुलने वाला। फातिमा कौन से कलाम, कौन सा कलाम है, कौन सा कुरान है, वो सूरा कौन सा है, वो वहाँ अल्लाह के सामने खुलने वाला है। क्योंकि वहाँ इनकार करने की जरूरत ही नहीं होती किसी भी। तब हमें समझे थे मरियम ही सूरा है, हम ना फातिमा है, मालूम था, तब वहाँ कौन नहीं बोल सकते, मालूम है नहीं। तो ऐसे हाथ बांधे बाकायदा अदब के साथ, ताजीम के साथ, किसी को जरूरत नहीं होगी कि निगाहें उठाकर सैयदा कायनात को देख सके। वहाँ अल्लाह की हुक्मदुली कौन करेगा, वहाँ ये अकल नहीं रहती, वहाँ ये अकल नहीं रहती। तब उस वक्त सैयदा कायनात सलामुल्लाहि अलैहा इधर 70,000 हो रहे, आजू बाजू आगे पीछे 70,000 हुरों के झुरमट में तशरीफ लाएंगे मैदान महशर में। कितने, 70,000 हुरों की झुरमट में मैदान महशर में तशरीफ लाएंगे। उस वक्त उनके सर पर एक सब्ज और एक सुर्ख चादर होगी, एक सब्ज और सुर्ख चादर होगी। ये सब्ज चादर किसकी है, ये इमाम हसन और पीराने पीर गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु की है। और ये लाल चादर किसकी है, ये शहीदों के खून की चादर है, ये शहीदों के खून की चादर है। ये दो चादरें उनके सर अनवर पर होंगी। और 70,000 हुरों की झुरमट में सैयदा कायनात तशरीफ लाएंगी। अब ये चादरें घरों में जब फातिहा बैठते नहीं, मजलिस बिठाते, मालूम है, 11वीं की मजलिस बिठाते हैं, मुहर्रम की, मौलूद की मजलिस बिठाते हैं, तो घर में चादर बांधते थे, मालूम है, चादर बांधते थे। चादर बांधकर उसके नीचे बैठकर पढ़ी करते थे। तो लोग जो है ना, बहुत इल्म आने के बाद, अब हम ना, पहले हम जाहिल लगते हैं, वे चादर नहीं, वरना इल्म आया उनको निकाल के फेंके,
माज़ल्ला, उसके ऊपर पंजतन के पाक नाम रहते थे, आयत रहती है ना, तो निकाल के फेंकने लगा वो घरों में से। बुजुर्ग हमारे करे थे, उसमें देखो सुनो कितना बड़ा राज है। सैयदा कहना जब आएंगी तो उनके सर पर 2 चादरें होंगी, या तो हरी चादर बनते हैं या तो लाल चादर बनते हैं ना घर में, बड़े बताते हैं सब। तो उनके सर पर 2 चादरें होंगी, एक सब्ज होगी एक सुर्ख होगी। तब जो है ना अल्लाह तबारक तआला जो जो उस चादर के साए में आएगा उसकी बख्शिश फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए वो चादर आज इस दुनिया में बांध के आज बैठते हैं औरतें, आज दुनिया में बांध के बैठा जाता है, मगर तुम्हें उस चादर से हटाया गया है, उस चादर से हटाया गया है और तुम्हारे दिलों से वो मोहब्बत निकाली गई है पंजतन पाक की, ताकि तुम्हारे ऊपर जन्नत की परछाई तक न पड़ने पाए। तुम क्या समझ रहे हैं? इसे समझ रहे हैं ये शिर्क। तुम्हें नमाज पढ़ो जाओ जन्नत में, रोजा रखो जाओ जन्नत में, मगर किस हद तक तुम्हें डुबोया गया है तुम्हें इसका अंदाजा नहीं, इसका अंदाजा नहीं है, समझे। तब उस वक्त सैयदा कायनात सलामुल्लाहि अलैहा की जब सवारी आएगी मैदान महशर में, उस वक्त सैयदा कायनात कहेंगी ऐ अल्लाह सबसे पहले मेरे बच्चों का फैसला कर, सबसे पहले मेरे बच्चों का फैसला कर। और हदीस पाक है, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बरोज़े महशर सबसे पहले जिनका फैसला किया जाएगा वो शुहदा होंगे। शहीद अपने सर को या अपने हाथ को या अपने पाँव को, जो हिस्सा उसका जिस्म का काटा गया, वो अपने हाथ में लेकर खड़ा होगा और पूछेगा, अल्लाह से सवाल करेगा, ऐ अल्लाह पहले मेरा फैसला कर, मुझे ये इंसाफ दिला कि मेरा सर क्यों काटा गया था, मेरा हाथ क्यों काटा गया था, इसने मुझे ये काट कर इसका मेरे टुकड़े करके मुझे शहीद क्यों किया गया था, मुझे क्यों किया था इसने, पहले मेरा फैसला कर। तब उस वक्त अल्लाह ताला सबसे पहले शहीदों का फैसला करेगा और शहीदों को ऐसी जगह बिठाएगा जिन्हें देखकर उन पर अंबिया भी रश करेंगे। वो औलिया अल्लाह में से भी होंगे, वो औलिया अल्लाह में से ऐसे शहीद भी होंगे कि जिन पर देखकर अंबिया भी रश करेंगे, औलिया अल्लाह के वास्ते फरमाया गया है। तो वो शहीद, वो शुहदा जिन्हें अल्लाह ताला जिनका फैसला सबसे पहले करेगा, और उन शहीदों में सबसे अव्वल जिसका फैसला होगा वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम होंगे और इमाम हसन अलैहिस्सलाम होंगे। अब फैसला ये होगा कि जो उनका वो अलग, जो उनका दोस्त वो अलग, जो उनका दुश्मन वो अलग हो जाएगा। तो इस तरह फैसला होगा। सैयदा कायनात जब मैदान महशर में आएंगी तो उस वक्त पता चलेगा कि मामला क्या था और ये करबला क्या था, ये राज क्या था। तब हर एक को करबला का राज समझ में आएगा। इस वास्ते कल ये शेर पर मैंने बयान खत्म किया था। वान हलक पर था खंजरे बेदाद चल रहा, वान हलक पर था खंजरे बेदाद चल रहा, यान मिल रहा था शरबते दीदार का मजा, जाना न जान, जाना न जान आशिक शैदा से मिल गया, तन था तमाम, तन था, तन समझते हैं, तन बोले तन था तमाम, महवे तमाशा ये किबरिया। ये जज्ब इश्क आले मोहम्मद का काम है। अल्लाह ताला से इश्क करना, अल्लाह ताला के इश्क को जज्ब करना, ये किसी नबी का, किसी आम उम्मती का, हमारा तुम्हारा जैसा का काम नहीं है। तुम्हें क्या समझा हमें अल्लाह से इश्क करते हैं? नहीं, कोई नबी अल्लाह से इश्क कर ही नहीं सका जिस तरह इमाम हुसैन ने किया है। इस वास्ते फरमाना शायर क्या, ये जज्ब इश्क आले मोहम्मद का काम है, जल जाए पर फरिश्तों के ये वो मुकाम है, जल जाए पर फरिश्तों के ये वो मुकाम है। वो मुकाम कौन सा था? करबला के मैदान में जब शहादत हो रही थी, गला कट रहा था इमाम अली मकाम का, तो वो मुकाम कौन सा था जहां अगर फरिश्ते भी होते तो उनके पर जल जाते? उसको जज्ब किया हुआ था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने। तो वो कौन सा मुकाम था, क्या था? तो हमने कल तकरीर में यहाँ तक खत्म किया था, जब इमाम अली मकाम का जब गला कटा, जब उसने गला छुरी चलाना शुरू की, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो दीदार का मजा ले रहे थे, उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुस्कुराते मुस्कुराते जो है ना अल्लाह ताला की बारगाह में जा रहे थे और अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आ रही थी, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्जिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ये अल्लाह तबारक ताला ने आवाज देकर अपने बंदे को अपने पास ले लिया। इसका माना है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, यानी ऐ इत्मीनान पा जाने वाले नफ्स, इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्जिया, तू अपने रब की तरफ इस हाल में लौटा कि तू उसकी रजा का तालिब भी हो और उसकी रजा का मतलूब भी हो। यानी आसानी समझा दूं, ऐ मेरे बंदे तू मेरे तरफ इस तरह लौटा, तू मुझसे राजी और मैं तुझसे राजी, तू मुझसे राजी मैं तुझसे राजी। फदखुली फी इबादी, बस तू मेरे कामिल बंदों में शामिल हो जा।
वदखुली जन्नती, अब तू मेरी रहमतों और कुर्ब व दीदार वाली जन्नत में तू दाखिल हो जा। इस आयत के साथ इस आवाज़ जब गूंजी तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रूह अल्लाह ताला के दीदार में क्या फरमाया, वदखुली जन्नती के मामले के साथ आप शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन के बाप को मुकम्मल करने के लिए उस जहां में चले गए। अब आप जब तक हयात थे यहाँ के इमाम थे इस जहां के, अब आप वहां के इमाम होंगे कयामत तक और अजल तक वहां के इमाम होंगे। अब वो जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जन्नत में अब चूंकि चले गए, आप तो जन्नत के सरदार हैं, जन्नत के सरदार हैं। अब बरोज़ महशर अब हम भी जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह, तब जो है न वहां पर आदम भी होंगे, नूह भी होंगे, इब्राहिम भी होंगे, मूसा भी होंगे, ईसा भी होंगे, हर नबी होगा। और तब उन नबियों से जब पूछा जाएगा कि अय आदम तुम जन्नत में हैं, तुम जो है न अबुल बशर हमारे जद अबुल बशर हैं, तो आप जन्नत में किसके साये में हैं? तो वो कहेंगे मेरा सरदार हुसैन है। क्या कहेंगे? मेरा सरदार हुसैन है। फिर इसी तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, हर नबी यही कहेगा कि हमारे सरदार कौन है। हर नबी को कहना पड़ेगा जन्नत का सरदार इब्राहिम नहीं, मूसा नहीं, ईसा नहीं, याकूब नहीं, हुद नहीं, दाऊद नहीं, हाँ कोई नबी नहीं है। कौन है? इमाम हसन और इमाम हुसैन को जन्नत का सरदार हर नबी को मानना पड़ेगा। इस वास्ते उनसे रिश्ता जोड़ लो, बना लो, अपना ताल्लुक मजबूत कर लो मरने से पहले ही इंशाअल्लाह। हाँ जब इस नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल रजी अल्लाह ताला अन्हु सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इतनी बेदर्दी से शहीद करने के बाद, कितनी हमने वाक़या सुना कल का कि कितनी बेदर्दी से उनको मारा गया और उनके बच्चों को कत्ल किया गया। अली अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु को, नन्हे अली असगर रजी अल्लाह अन्हु को, फिर हज़रत कासिम को किस तरह से इन बदबख्तों ने मारा। फिर मारने के बाद उन पर घोड़े दौड़ाए, फिर ये सारा मामला हुआ और फिर बिलाखिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी जान अजीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान कर दी। जब इतना सब कुछ हो गया, आपका गला भी काटा गया, सर अनवर को तन से जुदा किया गया, तो इसके बाद भी यजीदियों का दिल नहीं भरा था। आपके जिस्म अतहर पर जो कपड़े थे ख़ानदानी तबरुकात, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़ेब तन फरमा कर निकले थे, तो जो ही आपकी शहादत हुई तो आपके साथ क्या मामला किया गया वो सुने गौर से। इसहाक बिन हयात हजरमी, इस बदबख्त ने इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम की कमीज उतार ली। क्या? शहीद होने के बाद आपकी कमीज उतार ली गई। फिर बहर बिन काब ने आप रजी अल्लाह तआला अन्हु का पाजामा निकाल लिया। फिर इसके बाद कैस बिन अशद, इस बदबख्त ने आप रजी अल्लाह तआला अन्हु की चादर निकाली। आप रजी अल्लाह तआला की चादर, अब जंग खत्म होने के बाद माल लूट लिया जाता ना, ये जालिम जानवर किस्म के लोग माल लूट रहे, क्या क्या कर रहे हैं? ये जालिम लोग माल लूट रहे हैं। किसका? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शहीद होने के बाद उनके जिस्म अनवर से कोई चादर ले रहा है, कोई कमीज ले रहा है, कोई पाजामा ले रहा है, ये लूट रहे हैं बदबख्त लोग। किसी बदबख्त ने उनकी अंगूठी उतार ली। फिर उसके बाद असवद बिन खालिद ने उनकी नालैन मुबारक, आपके जूते मुबारक उतार ले। फिर बनी नशल का एक शख्स आपकी तलवार ले लिया। फिर इसी तरह जो जिसके हाथ आता था वो ले लिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का लाशा वहाँ पर गिरा था। इतना करने के बाद भी अब उनका जी नहीं भरा। ये अहले बैत के खून के प्यासे बदबख्त लोग, जो जिसमें शामी और कुफी सब जमा थे, इन्होंने अहले बैत अतहार के खीमों पर हमला किया, जहाँ पर बीबियाँ थी, उनकी अज़वाज थी, औरतें थी। अहले बैत के ख़ानदान के जो खीमे थे उन पर हमला किया। उन पर हमला करके उनके खीमों में जो असबाब थे, उनके ज़रूरत के इस्तेमाल की चीज़ें, वो सब लूट ली। फिर वो सामान सब खाने पीने का जो भी था, जो बचा था नहीं था, जो भी चीज़ थी, सब कुछ लूट लिया गया। फिर उन पर्दा नशीन औरतें, तैयबा ताहिरा सैयदा कायनात की औलाद सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ऐसी बीबियाँ थीं जिनकी माँ के बारे में आता है, सैयदा कायनात के बारे में, उनके सर का एक बाल भी आसमान ने नहीं देखा। क्या? ऐसा पर्दा था कि ये सर का एक बाल भी आसमान ने नहीं देखा। एक हदीस है, आपको सुनाता हूँ, आगे चलूँ तो वो ऐसी थी, तो इनकी तरबियत सैयदा ज़ैनब की कैसी हुई होगी और इनकी पर्दादारी कैसी कैसी की होगी, आपको समझ में आ जाएगा। कि हदीस पाक में है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सहाबा के आंखों के सामने से गायब हो गए, कई दिन तक नज़र नहीं आए। मैं मुख्तसर बयान करूँ कि कई दिन तक नज़र नहीं आए, तो सहाबा ढूंढते हुए चले गए
کہ رسول اللہ کہاں گئے. عشق میں دیوانے ہو جاتے تھے صحابہ, تھوڑی دیر آقا کا چہرہ نظر نہ آیا تو جب ڈھونڈتے ہوئے گئے ایک جگہ پر ایک شخص بکریاں چرا رہا تھا, تو اسے پوچھے کہ ہمارے نبی رسول اللہ کئی دن سے غائب ہیں, نظر نہیں آ رہے تھے, ہم ڈھونڈ رہے, کیا تو نے کہیں دیکھا ہے؟ تب وہ بولتا ہے کہ مجھے پتا نہیں تمہارے رسول کون ہے, مگر میں نے یہ ضرور دیکھا ہے کہ میری بکریاں جو روزانہ یہاں چارہ چرتی ہیں, 3-4 دن ہوئے میری بکریاں چارہ چرنا چھوڑ چکی ہیں اور آسمان کی طرف چہرہ کر کے روتی ہیں, اور اس فلاں جگہ سے ایک عجیب سی رونے کی آواز آ رہی ہے. تب صحابہ سمجھ گئے ضرور بھی ضرور ہمارے آقا ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. آقا ہماری پریشانی میں گھما کرتے تھے, میری امت کا کیا ہوگا, میری امت کا کیا ہوگا. تب جو ہے جا کر دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ایک غار ہے, اس میں سجدہ کیے ہوئے ہیں اور اتنا رو رہے ہیں آقا کہ آنکھوں کا پانی جو ہے ایک دھار بن کر بہ رہا ہے, اتنا رو رہے ہیں. فرما رہے ہیں یا اے اللہ میری امت, ربی حبلی امتی, ربی حبلی امتی, اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا, میری امت کا کیا ہوگا, کیسے کیسے شخص آئیں گے اور کس طرح گمراہ کریں گے. یہ سوچ کر رو رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تب جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آواز دیتے ہیں. اس غار کو غار سجدہ کہا جاتا ہے, آج بھی وہ موجود ہے. بولتے ہیں کہ یا رسول اللہ سجدے سے سر اٹھائیں, میں ابوبکر نہیں اٹھاتے. پھر حضرت عمر بولتے ہیں, تو حضرت عثمان بولتے ہیں, کوئی بھی صحابی, ہر صحابی بولنے کے بعد نہیں اٹھاتے. پھر حضرت مولا علی مشکل کش آتے ہیں, بولتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں علی سر اٹھائیں, پھر بھی نہیں اٹھاتے. پھر اس کے بعد جا کر امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو لایا جاتا ہے. بچوں سے بہت محبت کرتے تھے, اب امام حسن حسین کی خاطر اٹھائیں تو آ کے امام حسن امام حسین علیہ السلام بولتے ہیں کہ نانا حضور سر اٹھائیں, ہم حسن میں حسین, پھر بھی نہیں اٹھاتے. تب صحابہ مشورہ کرتے ہیں. تب مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ اب سیدہ کائنات کو لانا پڑے گا, کیونکہ آقا علیہ السلام دنیا میں سب سے زیادہ جس سے محبت کرتے تھے وہ سیدہ کائنات تھی. اپنی بیٹی سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے. کہیں جانا ہوتا تو آخر میں سیدہ کائنات کا چہرہ دیکھ کر جاتے تھے. اگر کہیں سے آتے تھے تو سب سے پہلے سیدہ کائنات کا چہرہ دیکھتے تھے. جب سیدہ کائنات آتی تھی تو ان کو بیٹھنے کے لیے اپنی چادر بچھاتے تھے. اور صحابہ رسول اللہ کو بات کرنا ہے تو کیا بولتے تھے, فداک ابی و امی یا رسول اللہ بولتے تھے, یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کائنات سے بات کرتے تھے تو یہ کہتے تھے فداک ابی و امی یا فاطمہ, اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو, اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو. اتنی محبت کرتے تھے. اب سیدہ کائنات کو مولا علی لے کے آنے بعد سیدہ کائنات حاضر ہوئی. بولتے ابا حضور سجدے سے سر اٹھائیں, دیکھیں میں فاطمہ آئی ہوں. تب بھی سر اٹھانے کو تیار نہیں. آقا علیہ السلام تب بھی سر اٹھانے کو تیار نہیں. تو آخر میں بالآخر سیدہ کائنات فرماتی ہیں یا رسول اللہ سجدے سے سر اٹھائیں ورنہ آپ کی بیٹی فاطمہ اپنے سر سے چادر اٹھائے گی. اللہ اکبر. کیا فرماتے ہیں, سجدے سے سر اٹھائیں ورنہ آپ کی بیٹی فاطمہ اپنے سر سے چادر اٹھائے گی. اگر سیدہ کائنات سر سے چادر اٹھاتی اور آسمان ان کے سر انور کا ایک بال اگر دیکھ لیتا تو آسمان ٹوٹ کر گر جاتا تھا, اسی وقت قیامت آ جاتی تھی. کیونکہ وہ راز تھا سیدہ کائنات کے بال, اگر ایک بال بھی اگر دکھائی دیتا, یعنی اس میں اشارتاً فرمایا گیا ہے سیدہ کائنات کا ایک بال, یعنی ایک بال کی مقدار کتنی ہوتی ہے. ہاں, اگر سیدہ کائنات کی حقیقت, اصل حقیقت کہ آپ کیا ہیں, سیدہ کائنات حقیقت میں ہے کیا, اگر یہ آسمان جان لیتا تو وہ ٹوٹ کر گر گیا ہوتا, اس میں برداشت کرنے کی قوت باقی نہیں رہتی تھی. سیدہ کائنات کی اصلیت کو, وہ پنجتن پاک کے اس نور کو آسمان میں دیکھنے کی تاب نہیں تھی. تب یہ جملہ سننے کے بعد رسول اللہ سر اٹھاتے ہیں کہ کہیں فاطمہ اپنے سر سے چادر نہ اٹھائے. تو سوچو کیسی پردہ داری تھی اور کیسی حیا تھی اور کتنا ادب احترام اور کیسے انہوں نے زندگی گزارے ہوں گے. تو اور اپنی بچوں کی, اپنی بیٹی کی پرورش کیسی کی ہوگی. تب یہ بدبخت یزیدی جاتے ہیں, ان کے خیموں پر حملہ کرتے ہیں, حملہ کر کے ان کا سارا سامان لوٹ لیتے ہیں. لوٹ لینے کے بعد ان پردہ نشین, ان پاکیزہ طیبہ طاہرہ عورتوں کی چادریں نکال لیتے ہیں. اب کیونکہ قیدی بنانے والے اب کیا کرنے والے, انہیں حکومت کے باغی کہہ کر انہیں قیدی بنائیں گے, بیڑی بنائیں گے. ہاں, بیڑیاں ڈال کر لے جانے کی تیاری ہو, کیونکہ قیدیوں کو چادریں وغیرہ نہیں دی جاتی, اس واسطے ان کے چادریں نکال لینے کے بعد ان کے خیمے جلا دیے جاتے ہیں. 1 یا 2 خیمے اتنے باقی بچ جاتے ہیں. باقی کے جو ہے نا, یعنی جیل بنانے کے لیے ایک خیمہ رکھ کر باقی کے خیمے جلا دیتے ہیں. پھر اتنا کرنے کے بعد بھی ابھی بھی ان کا جی نہیں بھرا. ابن سعد بدبخت آواز دیتا ہے کہ کون ہے جو ان لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑائے.
जो ये लाशें हैं इन पर घोड़े दौड़ा कर इन्हें कुचल दो। कौन ऐसा करेगा? जो ऐसा करेगा उसे मैं हुकूमत की तरफ से इनाम दिलाऊंगा। ये इनाम दिलाने की लालच में फिर 10 सिपाही आगे बढ़ते हैं कि मैं आऊँगा, मैं आऊँगा। फिर वो 10 सिपाहियों को भेजकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके बेटे और उनके असहाब जितने भी जो शहीद हुए थे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने लाला कर रखे थे, खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का भी लाशा वहाँ मौजूद था। तो उन लाशों पर घोड़े दौड़ाए जाते हैं, लाशों पर घोड़े दौड़ाए जाते हैं और उन्हें कुचला जाता है। जिस वक्त ये मंजर, उनका सर काटना और उनके लाशों पर घोड़े दौड़ाना, जब उनके सर को काट रहे थे, ज़बा हो रहे थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, उस वक्त का मंजर हदीसों में बयान किया गया है। और ये जो है सहाबा के अक़वाल में और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के मकतूबात में बयान किया गया है कि उस वक्त जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गर्दन पर जब छुरी चल रही थी, उस वक्त सारी की सारी जमीन यूं थर्राने लगी। ऐसा होने लगा जैसे जलजला आने वाला है और अर्श थर्रा उठा, अल्लाह ताला का अर्श और आसमान थर्रा उठा। दिन में सितारे नमूदार हो गए थे। 10 मुहर्रम को क्या हुआ था? जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गर्दन काटी जा रही थी तो दिन में सितारे नमूदार हो गए थे, निकल चुके थे। जमीन और आसमान खून के आंसू रो रहे थे। जमीन और आसमान से जिस जगह का पत्थर उठाया जाता करबला के बाद तो वहां से खून निकल आता था। यानी जमीन रो रही थी। करबला के बाद जिस जगह का पत्थर उठाया जाता तो जमीन से क्या होता था? खून निकलता था। आसमान से खून के आंसू गिरने लगे थे। अल्लाह ताला ने उसे हुक्म दिया, आए खून के कतरों आसमान के अगर जमीन पर गिर गए तो ये कयामत तक यूं ही बरसते रहेंगे, वहीं रुक जाओ। जब अल्लाह ताला ने ये कहा तो वो फरमाया जाता है, रिवायतों में आया कि इस वक्त तक आशूरा के दिन तक 61 हिजरी जो ये मुहर्रम का दिन है आशूरा का, उस वक्त आसमान बिल्कुल साफ और शफाफ था, बादल नहीं थे। ये जो बादल नजर आते ना हमें, उजले बादल, ये आसमान उस वक्त रो रहा था, उसके आंसू गिर रहे थे। अचानक अल्लाह ने हुक्म दिया और वो बादल वहीं के वहीं लटक के रह गए, आज तक मौजूद है, वरना उससे पहले ये बादल मौजूद नहीं थे। ये आशूरा के दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खातिर आसमान से निकले हुए आंसू हैं, वो बादल आज भी वो बारिश बनकर अल्लाह ताला के हुक्म से बरस रहे हैं। अगर उस तरह उस वक्त अगर खून बनकर बरस जाता तो कयामत तक बारिश ही नहीं होती थी, खून ही बरसते रहता था। इस वास्ते अल्लाह ताला ने उन्हें वहीं रुकाया, तो बादल उस वक्त नमूदार हुए। फिर उसके बाद मलाइका, आसमान के जितने नूरी मलाइका थे सब के सब गिरिया कर रहे थे, हर कोई रो रहा था। फिर जिन्नात रो रहे थे। फिर उसके बाद रिजालुल गैब, जितने भी मर्दाने गैब हैं, हर कोई गिरिया उजारी में मुब्तला हो गया था। फिर अल्लाह ताला की हर मखलूक रो रही थी। जगह जगह जमीन पर जलजले की मानिंद जमीन थर्राने लगी थी और समंदर का पानी उछलने लगा था। लहरें उछलना गिरना ऐसा कर रही थी जैसे अपना सर पटक रही हो और गिरिया उजारी कर रही हो, रो रही हो, मातम कर रही हो। नदी का, दरिया का हर पानी जो है ना, उस लम्हात में जब छुरी चल रही थी, उस लम्हात में ऐसा मंजर हो गया था दुनिया का। और अचानक हर तरफ दुनिया में अंधेरा छा गया। थोड़े लम्हात के लिए दुनिया में हर तरफ अंधेरा छा गया और सितारे नमूदार हो गए। दुनिया के दरिया गिरिया सब इस तरह हाल हो गया, दरियाओं का, तमाम समंदरों का वगैरह। अब नहर फुरात का पानी सबसे बढ़कर मातम करता था। नहर फुरात का पानी ये सबसे बढ़कर मातम करता था, क्योंकि नहर फुरात देख चुकी थी हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह तआला अन्हु के बच्चों की शहादत। मोहम्मद इब्राहिम किस तरह काट कर उसमें फेंके गए थे। पहले उनके तनों को फेंका गया था, फिर उनके सरों को फेंका गया, फिर वो दोनों सर और तन मिले, फिर जाकर किनारे पर लगे। ये करामत, ये तमाम चीजें। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर किस तरह पानी बंद किया गया था और उन्हें वहां पर किस तरह रोका गया था। और बदबख्तों ने क्या कहा था कि पानी हुसैन, सारी जमीन भी भर जाए तो तुम्हें पानी का एक कतरा नहीं देंगे। ये तरसना, ये तड़पना और उनके बच्चों को तड़पाना और हजरत अब्बास अलमबरदार का नहर फुरात पर आना और पानी लेकर निकलना और मशकीज़ा टूट कर गिर जाना, उसका बेकार हो जाना। और हजरत अब्बास अलमबरदार रजी अल्लाह तआला अन्हु का ये कहना कि अफसोस ऐसे किना, मैं पानी नहीं ला सका, ये कहना, ये तमाम के तमाम नहर फुरात देख चुकी थी। तो ये तमाम की तमाम चीजें जो है ना, इसमें से एक नुक्ता निकाल कर मैं आपको बताना चाहता हूँ। नहर फुरात का वो गिरिया, अल्लाह तबारक तआला जो वो नहर फुरात तड़पी थी कि काश मेरा पानी हुसैन के लबों तक पहुंच जाए और उनके बच्चों तक पहुंच जाए। अफसोस कि मैं ये पानी नहीं पहुंचा सकी। मेरा ये नहर फुरात का पानी हुसैन और उनके असहाब तक, उनके बच्चों तक नहीं पहुंच सका। हाय अफसोस, जब ये नदी कह रही थी तो तब अल्लाह ताला के हुक्म से जो है ना, एक मामला ऐसा हुआ सामने कि हम उसकी निशानी देखते हैं। आज क्या उसकी निशानी देख रहे हैं हमें। वो क्या निशानी है कि जब ये मुहर्रम का अलम रखा जाता है
पंजा रखा जाता है, अलम रखा जाता है। जो पंजा निशान रखते हैं वो निशान को मुहर्रम के 10 तारीख को आशुरा के दिन उठाते हैं, उठाकर वो जुलूस के साथ निकलता है। जुलूस के साथ निकल के जाने के बाद उसे नदी को लेके जाकर वो नदी में मुंह धुला के उसका लाया जाता है। क्या बोलते हैं तुम्हें मोटी जुबान में? पीरा का मुंह धुला लेकर बोलता है। क्या बोलते हैं? पीरा का मुंह धुला लेकर। यानी मुहर्रम के दिन हर साल नदी के पानी को, समंदर के पानी को, तालाब के पानी को, जो भी पानी है वो पानी को दिखाया जाता है कि इमाम हुसैन की शहादत के वक्त तो गिरिया कर रहा था, रो रहा था कि हाय अफसोस इमाम हुसैन तक पानी होकर मैं पहुंच नहीं सका। अब इमाम हुसैन नहीं पहुंचा तो क्या हुआ? हर साल उनका अलम पानी तेरे पास पहुंचता रहेगा। हर दिन आशुरा को हर साल ये अलम आकर तुझमें नहाकर अपनी जगह पर जाकर बैठेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस वास्ते वो अलम दिन भर सारी गलियों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के दिन वो अलम आशुरा के दिन उठाते हैं। उठाने के बाद वो लेकर गलियों में घुमाते हैं और उसके साथ एक झंडा भी होता है। अलम, अलम यानी मालूम होता है ना, झंडा। फिर वो निशान वो लेकर इस वास्ते घुमाते हैं। जब अलम इस वास्ते घुमाते हैं कि जब हजरत अब्बास अलम बरदार रजी अल्लाह तआला अन्हु जब शहीद होने लगे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सामने थे। आपने कहा कि ए अब्बास, तेरे शहीद होने से मेरी कमर टूट गई, तू मेरा सिपे सालार था, मेरा अलम उठाने वाला था। ए अब्बास, अब मेरा अलम कौन उठाएगा? बोले थे ना इमाम हुसैन में तस्करा सुनाया था ना हजरत अब्बास अलम बरदार रजी अल्लाह तआला की शहादत का। तब अल्लाह ताला ने जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जबान कौन सी जबान थी? मकाम में कुन रखती थी, जो जुबान से निकलता था वो हो जाता था। जब आपने फरमाया था अपने गम में, अय अब्बास तू मेरा अलम उठाने वाला, अब मेरा अलम कौन उठाएगा? तो अल्लाह तबारक तआला आज दुनिया को दिखा रहा है कि हर साल हर मुहर्रम के महीने में अय हुसैन एक अब्बास गया तो क्या हुआ? हजारों, करोड़ों, अरबों, खरबों अब्बास दुनिया के अंदर ऐसे पैदा फरमाया अल्लाह ताला ने, जो हर साल मुहर्रम के दिन, आशुरा के दिन अलम उठाते थे, लेकर अलम उठाकर लेकर घूमते हैं गलियों में। अब जो या हुसैन करके अलम उठाएगा वो अब्बास होगा। अब्बास से वफादार कहा जाता है तुम्हें, अब्बास से बा वफा। सुने ना नज़मों में नाम अब्बास से बा वफा। इसका मतलब यह है कि अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु का अलम ये जो उठाया जाता है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अलम आपने जो अब्बास ने उठाए हुए थे, ये अब्बास से बा वफा, अब्बास से वफा इसलिए कहा जाता है कि आज जो वफादार, आज जो अलम इमाम हुसैन का उठाएगा वो अब्बास से बा वफा होगा। यानी अलम उठाने वाला, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अलम उठाने वाला वो वफादार कहलाएगा। इसका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वफादार कहलाएगा। और जो वफादार है वही अलम उठाएगा, और जो बेवफा है उसे शिर्क और हराम बिदअत कहेंगे। इतना क्लियर है क्या है? इस वास्ते देखो, मैं कई निशानियां तुम्हें वक्त बा वक्त स्टेप बाय स्टेप बताते आया। इसका मजमुआ बनाएंगे इंशाल्लाह। मुहर्रम के 1 तारीख को कुदाली क्यों मारी जाती साहब? 1 तारीख से शहादतों का आगाज हो गया। 1 तारीख से शहादतों का आगाज हो गया। फिर उसके बाद 5 तारीख को, मैं मोटी भाषा में बोलता हूँ, 5 तारीख को पीरा की वर्द साहब, क्योंकि उस वक्त से जो है ना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मगरिब का वक्त हुआ। 6 तारीख से शहादतें शुरू हो गई थी, अहले बैत अतहार की शहादतें शुरू हुई थी। क्योंकि इस वास्ते उनके नाम के पंजे जो है ना हजरत अली, फातिमा, हसन, हुसैन, इस तरह, और कासिम दूल्हा, इस तरह। और आज का जो दिन है ये क्या बोलते हैं, कौड़ी पीरा या इस तरह, या दूसरे बच्चों के छोटे छोटे पंजे बैठाते ना कब बैठाते हो? फिर अब वो हजरत अली असगर रजी अल्लाह तआला अन्हु वगैरह के नाम से जो है ना वो निशान बिठाया जाता है। इसमें कुछ भी फजूल नहीं। हमारे बुजुर्ग हमारे जितने भी बुजुर्गान दिन गुजरे हैं, औलिया कराम, अगर ये हराम होता तो ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर में अलम रखते ही नहीं थे। अगर ये हराम होता तो बंदा नवाज गुलबर्गा शरीफ में अलम रखते ही नहीं थे। अगर ये हराम होता तो बीजापुर में सरकार अमीनुद्दीन आला रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में अलम ही नहीं रहता था। ये अलम, ये पंजा, ये उन बुजुर्गों की सुन्नत है। हर एक उसमें जो है ना रम्ज पोशीदा है। फिर उसके बाद कल मैंने बताया था 8 तारीख को अलावा क्यों खोते साहब, आगे पीछे भी करते हैं लोग, मगर बाद में क्या होता है ला इल्मी में रसूमात दाखिल होते हैं, आगे पीछे हो जाता है, कम ऊंच नीच होते, मगर खोदते हैं, वो दिखाते हैं, कभी भी खोदो कभी भी बनाओ, मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चाहने वालों को आग नहीं जलाती है, बाकायदा दिखाया जाता है। अलावा क्यों खोदा जाता है मैं कल के बयान में बताया हूँ। फिर उसके बाद शरबत क्यों पिलाया जाता है वो मैं बताया, ये पूरी सीरीज सुनो तो मैं बयान के उसमें है। फिर चोंगे की बनाते हैं साहब, ये मैं बताया। फिर उसके बाद खिचड़ा क्यों पकाया जाता है? खिचड़ा इसलिए पकाया जाता है कि जब बीबियां वहां पर मौजूद थी, जंग शुरू हो गई 1 तारीख से होने के बाद, अब उन्हें चावल अलग, दाल अलग, गोश्त अलग, बर्फी अलग, वो अलग बनाने का ये माहौल नहीं था। समझाने की बोल रहा हूँ क्या, अलग अलग चीजें पकाने का ये
वक्त नहीं था, माहौल नहीं था, इस वास्ते वो क्या करते थे, जो भी है अपने पास सब मिलाकर पका पका के मर्दों को खिला देते थे एक ही बार में, एक ही हांडी में। सफर में थे, एक ही हांडी में जो भी है मिलाकर पका कर दे देते थे, वो खिचड़ा बन गया। क्या क्या डालते खिचड़े में, सब डालते नहीं, सब मिलाकर पका के दे देते हैं, वो खिचड़ा हो गया। इस वास्ते मुहर्रम को आशुरा के दिन हर जगह खिचड़ा बांटते हैं, पका के बांटते नहीं, मालूम है नहीं, खिचड़ा बढ़ता है, शरबत बढ़ता है, चोगे बांटते हैं, फिर घोड़े बांटते हैं, बनाकर खिलाते हैं, फिर अलग कुदाली मारी जाती है। सब कहाँ तक आया था मैं, ये 8वीं मुहर्रम को ये अलावा जलाने का। फिर उसके बाद मैं क्या बताया, ये अलम लेकर घूमने का, उनका निशान जो है ना, ये पंजा तुम्हें अगर इनकार करना चाहते हैं तो ये हाथी पंजा है। हम क्या उसे ये अल्लाह बोल के उसके सामने सजदा नहीं करते, अगर इसे अल्लाह मानकर सजदा किया जिस तरह गैर लोग करते हैं तब वो शिरक होता है। इसे अल्लाह माना तो शिरक होगा। अल्लाह ताला दिलों की नीयतों को देखता है, उस पर अमल का दार व मदार दिलों की नीयतों पर है। अब एक बात बता दूं, देखो ये बातें मैं बयान तवील हो जाएगा, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बातें फिर दोबारा सुनने नहीं मिलती, फिर मैं बताऊं तो एक को मिले ना मिले, मगर बयान में एक बार रिकॉर्ड हो गई वो मजमून फिर याद नहीं आता, इस बात से बता रहा हूँ, बयान थोड़ा तवील हुआ तो हो दे। एक बात ये बताई जाती है कि नहीं हुआ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करने के बाद यजीद उनके सरों को नेज़े पर लगाकर वो मिट गए कहते हुए नारे लगाते। अब दोस्त रहा दिन बोला ना, दोस्त रहा दिन, दोस्त राहे दिन, दोस्त रहाना दिन, कितना फर्क है। ये भी ऐसा है, क्या है, यजीदा क्या करे थे, उन्होंने शहीद हो गए, उन्होंने खत्म हो गए करके उनके नेज़ों सरों को नेज़ों पर लेकर करबला से कूफा तक और वहां से शाम तक गए थे। तो ये उनकी सुन्नत में अदा कर रहे हैं, उन्होंने लेको फिरे थे, तुम्हें भी लेको फिर रहे हैं, ये नहीं करना। तो देखो क्या है, अल्लाह ताला दिलों की नीयतों को देखता है। अगर जायज़ तरीके से, अच्छे तरीके से, जिसमें खुराफात ना हो, शरीयत की खिलाफ वर्जी ना हो, अगर हम ये बताने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का झंडा, उनका अलम, उनका निशान लेकर जब निकलते हैं, क्या बोल को यजीदा क्या बोल को लेके थे कि हमने इमाम हुसैन और उनके साथियों को मिटा दिया, खत्म कर दिया, उनकी औलाद खत्म हुई, उनके 1 साल के बच्चे को भी नहीं छोड़े, हमें 14 महीने के बच्चे को भी नहीं छोड़े, सबको खत्म कर दिया, उनका खानदान खत्म हो गया, आले रसूल मिट गए, खत्म हो गए। इस वास्ते वो उनके सरों को नेज़ों पर लेकर निकले। मगर हमें आज ये बोल के लेकर निकल रहे हैं कि आए यजीदो बदबख्तो, तुमने मिठाया था, आज तक वो जिंदा है, ये हम लोगों को, दुनिया को दिखा रहे हैं। देखो उनका आलम आज भी गलियों में घूम रहा है, आज भी उनका पंजा जो है ना, ये 5 लोगों का निशान आज भी गलियों में घूम रहा है। उनकी नीयत अलग थी, हमारी नीयत अलग है। उनकी नीयत ये थी कि हमने मिटा दिया, हमने मिटा दिया, हमने मिटा दिया, ये कहते हुए गए थे। हम ये कह रहे हैं, हम क्या उनके शक्ल के जैसे बनाते हैं क्या साहब, इमाम हुसैन की जो चेहरा था ऐसा बनाते हैं क्या साहब, नहीं, पंजा बनाते हैं क्या दूसरे के शक्ल सूरत के साथ। अब बीबी फातिमा के नाम का निशान होता है तो हमें वहाँ सैयदा कायनात की क्या शक्ल सूरत है, क्या है इसमें, ये टुकड़ा है जिस पर आयतें हैं कुनिंदा की हुई, और यू से ये 5 यानी 5 का निशान जो है होता है, उसे लेकर उसे फूल खुशबू वगैरह लगाकर जो है क्या करते हैं, उसे घुमाते हैं, इस वास्ते कि आज तक जिंदा है। अब दारू पी को पकड़ते हैं साहब, नहीं जाना, दारू पी पकड़ते हैं, क्यों, उलमा क्या बोलने लगे, सब उलमा उसमें हमारी भी है और दूसरे भी है, क्या बोलने लगे, ये शराब पी के पकड़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ढोल बजाते हैं, ये करते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, गाते हैं, नहीं जाना उसमें। तो हुआ क्या, जब बुजुर्गान दीन थे, औलिया अल्लाह थे, जब तक खानकाई तालीमात थी तब तक का वो अलम बाकायदा औलिया अल्लाह की तालीमात पर ही निकलता था। जब निकलते थे तो एक झंडा और ये के लेकर निशान, इमाम हुसैन का एक निशान पंजे का और एक झंडा लेकर, संदल लेकर, उसे थोड़ा चाहे तो एक फूल लगाकर या खुशबू लगाकर लेकर गलियों में बाअदब निकलते थे और उसे नज़ारा करा के देखो इमाम हुसैन का दीन आज तक जिंदा है, उनका झंडा, उनका अलम उठाने वाला, और वो नदी का पानी जो तरसा था उसकी भी प्यास बुझाई जा रही है, उसे भी ठंडा किया जा रहा है, सब कुछ सही सलामत है, दिखा कर ले जाकर फिर उसे रख देते हैं। फिर जब भी वो आशुरा आता है फिर उसकी याद दिलाई जाती है। कुर्बानी क्यों करते हैं साहब, इमाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम जो गए थे मैदान मीना में, कुर्बानी का वाकया, गला नहीं कटा, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, खून भी नहीं हुआ, क्या भी नहीं हुआ, तो क्या हुआ, तो हर साल कुर्बानी करने का अल्लाह ताला ने हुक्म क्यों दिया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उनकी तुम्हें याद आए, सिर्फ और सिर्फ उनकी याद आए, हर साल तुम्हें याद करो, इस तरह इब्राहिम गए थे, इस तरह इस्माइल गए थे, इस तरह एक बाप अपने बेटे को कुर्बान करने तैयार हुआ था, इस तरह एक बेटा अपने बाप के लिए, अपनी अल्लाह के लिए, अपनी बाप की और अल्लाह की रजा की खातिर अपनी जान देने के लिए तैयार हुआ था, ये याद आए, इस वास्ते किया जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है जो तुम ये कुर्बानी करते हो
اس کا میرے پاس مجھ تک اس کا نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے. قربانی جو ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے, اس کا نہ مجھ تک اس کا نہ خون پہنچتا نہ گوشت پہنچتا. تو اللہ کیا پہنچتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جس نیت سے قربانی کرتے ہو, تمہاری دلوں کی نیتیں, تمہارا تقویٰ, تمہاری پرہیزگاری, تمہاری دلوں کی نیت مجھ تک پہنچتی ہے. کیا بول رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ دلوں کی نیت. کیا بول کے کر رہے ہیں قربانی؟ یہ دلوں کی نیت پہنچتی. تو اللہ تعالیٰ اسی طرح جب ہمیں علم لے کر نکلتے ہیں تو ہم کیا نیت سے لے کر نکل رہے ہیں, وہ نیت اللہ کے بارگاہ میں پہنچتی. سبحان اللہ. کیا وہ نیت اللہ کے بارگاہ میں پہنچتی؟ کیا امام حسین مٹ گئے کر کے ہم لے کے پھر رہے ہیں, یا وہ آج بھی ہے اللہ تیرے جنت کا سردار آج بھی زندہ ہے کر کے ہمیں لے کے گھوم رہے ہیں, یا رسول اللہ آپ کا نواسا آج بھی زندہ ہے, اس کے ماننے والے آج بھی زندہ ہے, یہ لے کے گھوم رہے, یہ سوچ کر جان کر لے کر گھوم رہے. یہ دیکھتا اللہ تعالیٰ. انما الاعمال بالنیات, یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, سب سے پہلی حدیث. انما الاعمال بالنیات, عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. تو نیت اچھی ہوگی تو کام صحیح طریقے سے کرو گے تو صحیح ہوگا. اب علماء کیا کریں, اسے جب تک خانقاہی تعلیمات تھی اولیاء اللہ بتاتے تھے, ہوتے آیا. اب اولیاء اللہ کی خانقاہی تعلیمات کم ہوئی تو علماء مدرسے سے پڑھ کر آئے. شریعت کی حدیثیں یہ تمام جو بھی ہیں, وہ جو حدیث کو جہاں لگانا تھا, جسے جہاں لگانا تھا, اس کا گڑبڑ کر کے کیا کریں, سب حرام 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 کہتے ہوئے. مگر لوگ جو کر رہے تھے وہ انہیں بولنے کے لیے اچھا بھی ہوا. کیا ہوا؟ اس میں خرافات رسومات داخل ہو گئے. ٹھیک اسی طرح شادی جیسے صحابہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتی تھی, ویسی آج نہیں ہو رہی. ہو رہی کیا صاحب؟ نہیں ہوتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, آقا اسلام کے زمانے میں کتنی سیدھی سادی شادی ہوتی تھی, آج نہیں ہو رہی. تو شادی میں جتنے گانے بھی لگاتے ہیں, ٹیپ بھی لگاتے ہیں, ناچتے ہیں, ہر چیز ہوتی, وہ دیکھ کر شادی حرام یہ کہہ سکتے ہیں کیا؟ ہمیں شادی حرام کہے تو چلتا ہے کیا؟ نہیں چلتا. شادی حرام نہیں, شادی جائز ہے, مگر جیسا کرنا ہے ویسا کرو. اگر اچھا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دے گا. اگر تم گانا بجانا ڈھول بجا کر ناچو گے, اللہ تعالیٰ اس کا بھی عذاب ہے ہی. تو شادی حرام نہیں ہوتی, شادی جائز ہی ہے. اسی طرح محرم کا جلوس حرام نہیں, پنجہ لے کر گھومنا, جھنڈا لے کر گھومنا حرام نہیں, جائز ہے, مگر اسے صحیح طریقے سے کرو. اب وہ صحیح طریقہ دکھانے والے کون, دکھانے کی ذمہ داری کس پر ہے؟ یہ علماء پر تھی. مسجدوں میں بیان کرو, طریقہ بتاؤ, لوگوں کو سکھاؤ, نوجوانوں کو وہاں بھیجو, برابر تمہیں درود پڑھو, سلام پڑھو, فاتحہ پڑھو, آرام سے ایک منقبت پڑھتے ہوئے, امام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے, صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے, درود پڑھتے ہوئے لے جاؤ. لے جا کر جو ہے نا اس کا جو کرنا ہے لا کر بٹھا دو. تب کسی کو آگے آنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تب کسی بھی چپ کر پیرا نہیں بھرتے. اگر یہ معاملہ ہوا تو پیرا بھرے کر کے ناٹک کرنے والا نزدیک آتا نہیں. اگر ایک جاننے والا شخص وہاں کھڑا رہا تو کسی بھی آئرے گھرے کو پیرا نہیں آتے. یہ کیا ہوا؟ ہمیں کیا کرے, ہمارے نوجوانوں کو گھر میں بٹھائے, علماء اسے حرام کا فتویٰ دیے سب مل کر. بعد میں کیا ہوا, یہ ہندو لوگ عاشقین پہلے سے اولیاء اللہ کے ساتھ اس جلوس میں شریک ہوتے تھے, پہلے سے ہوتے تھے. انہوں کیا کرنے لگے, بابا اور ಮಾಡಾಕ್ತಿದ್ರು ಮೊದಲಿಂದ, ಈಗ ಇವ್ರು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಾಕತ್ತಾರ. ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡತ್ತಾಗ ನಾವು ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ, ಯಾ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಲಿ ಮುಸುದ್ರ, ಅವ್ರು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾತ, ನಡಿ ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಕರ್ಕೋ. उसमें यल्लप्ಪ कल्लप्ಪ फुल्लप्ಪ सल्लप्ಪ सब है. आपको क्या करे, उन्होंने क्या करे, वो अलम जो है ना अपने हाथों में ले, अपने हाथों में ले को निकलते गए. तो बाद में उनके साथियां आते गए. आते जाने के बाद अब जो है ना उसके अंदर उन्होंने वो काम करने लगे जो उनके मजहब में जायज है. समझ में आ रही बात? उन्होंने क्या करने लगे, तब जमाने में क्या होता था, एक पंजा और एक झंडा, उसे खुशबू या फूल का हार लगाकर दरूद व फातिहा के साथ औलिया अल्लाह लेकर निकलते थे. अब उनके साथ हिंदू भी रहता था, हर रहता था, सब रहता था, हर चीज हर मजहब के रहते थे. ये मुसलमान आज घर में बैठे, गैर लोग आग उसे पकड़े. अब उसे उन्होंने जो है ना साड़ी भी पहनाओ, चोला भी पहनाओ, क्या भी करो. अब पूछने वाला कौन? अब उनके अंडर में है वो. अब तुम्हें उसे देखो, अब तुम दुश्मनों को मौका मिला ना, यजीदियों को हमारे हाथ से मौका दिए जमाने. अब जो यजीद के चेले चांटे हैं, आले रसूल को नहीं मानने वाले, उनका अदब नहीं करने वाले, उनका बुग़्ज़ अपने सीनों में रखने वाले, उनको हमने रास्ता खोल कर दे दिया. ये उलमा की जिम्मेदारी थी कि सही सलामत उन्हें जगह पर लाते. करबला के अंदर जो वाक़यात आए हैं, जब ये मैंने अलामे के बारे में कल बयान किया था, तो उस वक्त मुझे इन्होंने आकर पूछे कि जो ये पर्सनल डायरी है इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की, जिसमें शहादतों के औकात हैं, दिन हैं, वक्त हैं, तो कौन कब शहीद हुआ, कितने बजे से कितने बजे तक लड़ा, ये सारी तफसील है. तो ये अलामे का जो तुम्हें बोले ये भी इसमें है क्या, इन्होंने पूछने के बाद मैं क्या बोला, नहीं उसमें नहीं. तो ये कहाँ है? तो ये एक आलिम का किया हुआ बयान है, तकरीर हो, ये किस्सा किताबों में मौजूद है. ये हकीकत में करबला के मैदान में पेश आया था, जो आग जलाई थी और आग में वो शख्स
کو ले जाकर उस घोड़े ने गिराया, वो जलकर मर गया। और इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले थे कि हमारे आशिकों को और हमें जहन्नम की आग नहीं जलाएगी। फिर वो अलावा हर साल खोद कर उसमें कूद कर लोग आज भी दिखा रहे हैं कि उनके या हुसैन कहे कि जो अलावा में जाता है उसका पाँव नहीं जलता, उसे आग नहीं जलाती। तो ये सारी चीजें हैं, उसी करबला के वाक़े में है सब कुछ। मैं ये करबला का वाक़या छोड़ कर दूसरा क्या भी दलील दिया क्या साहब, दूसरा क्या भी वाक़या अपनी तरफ से मिला दिया क्या? नहीं। ये किसी भी आलिम की तकरीर सुनो, कौन सी भी किताब पढ़ो करबला की, चाहे तारीख़ करबला पढ़ो या सुल्तान करबला पढ़ो या गमे औराक पढ़ो, कौन से भी जितने भी करबला के पर लिखी गई किताबें हैं सब पढ़ो। ये बड़े बड़े उलमा, मुहद्दिसीन, मुफक्किरीन और मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन ऐसे लोग हैं, इसमें फ़ुक़हा कराम ऐसे लोगों लिखे हुए दास्तान करबला की। तो ऐसे लोग जब लिखे हैं उसमें है, तो इसी में आज गौर करो आप, तुम्हें आंखें खोलो, जो जो मुहर्रम के महीने में जो जो काम होता है, ये कुदाली मारना, पंजे बिठाना, फिर 5 दिन, फिर 8 दिन जुलूस निकालना, फिर उसे नदी को लेकर जाना, ये सब की सब चीज़ें इसमें मौजूद हैं। मगर उलमाए कराम इसे समझे नहीं, औलिया अल्लाह इशारे में उसे करने लगाते हैं ताकि किसी न किसी तरह ये जिंदा रहे। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, ये माना इसका क्या? इस्लाम हर करबला के बाद जिंदा होता है, यानी खत्म हुआ ही नहीं, जिंदा ही है। और सुनो, जब मुहर्रम बंद हो जाएगा मुकम्मल तो समझो कयामत आ गई। जब तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अलम जिंदा है तब तक इस्लाम जिंदा है। अगर तुम उसे फतवा देकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मकानात को बंद कराओगे, वो गिराओगे, वहाँ मस्जिद बनाओगे, कई जगह पर जो है ना ऐसा सुने हमें आया, वहाँ टॉयलेट तक बनाई, वहाँ टॉयलेट बनाई, ये जमात वाले जाको क्या करें, टॉयलेट बनाई। एक जगह थी, हम एक गाँव गए थे, तो वहाँ पर जो है ना इस्तिंजा के लिए जाना बोले, ख्याल करे तो लोग बोले मजोनों को कि कहने में वहाँ पहले महबूस वानी का चिल्ला आता, वहाँ झंडा आता, अलम रखा हुआ था। तो वो अलम को इन्हों क्या करे, हमें मस्जिद अच्छी खूबसूरत बनाएंगे करके मस्जिद बनाए, बना कुछ जगह पर क्या करे, इस्तिंजा खाना बनाए। तो आप वो इस्लाम मुसलमानों पर बिजली नहीं गिरेगी तो क्या गिरेगा? जिस तरह तुमने इमाम हुसैन को काटा था, इस तरह गैर लोग तुम्हें काटेंगे ही, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दुश्मन बन गए, जन्नत के सरदार के दुश्मन बन गए, तुम्हें गैरों के ऐसे तुम्हारे काट के टुकड़े कर ही दिए जाएंगे। जब तक या हुसैन कहने वाला हिंदुस्तान में है तब तक हिंदुस्तान में मुसलमान महफूज है, समझो। थोड़ी ना थोड़ी उसके दिल में मोहब्बत है मुसलमानों के लिए। जब ये पूरा बंद हुआ तब ये तुम ना इस्लाम बचेगा ना मुसलमान बचेगा, ये बात तय है, मुकम्मल तय है। क्या? इस वास्ते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अलम को मिटाना ये इस्लाम को मिटाने के बराबर है। अल्लाह ताला ने करबला यूं ही नहीं लिया, करबला का इम्तिहान अल्लाह ताला ने, करबला से इस्लाम फैला, करबला को बचाने वाले गरीब नवाज क्या बोले, दीन ही हुसैन है। क्या है? दीन ही हुसैन है। दीन पना अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन। तो समझने की कोशिश करो, काफ़ी बातें मैं इसमें बताया। आप वाक़या जो है ना मुझे लगता है मुख्तसर करना पड़ेगा। अब वाक़े को मैं आगे बढ़ाता हूँ।